Hi guys, I hope you are happy, good, and healthy. Today I'm going to start your cost accounting next chapter, labor turnover. Now, labor turnover, I give you the brief idea about the labor costing, how to calculate the wages, how to calculate the wages slip, or you can see the salary slip, how many are deductions. But apart from that, what is our labor? What are our employees? As you know that the labor is a laborer, or you can say the employer, the asset of the organization. So that is very important that we have to maintain a good relationship, of course, with our labor or you can say the employees, because जितना ज़रूरत हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लेबरर्स को या वर्कर्स को या जॉब होल्डर्स को जॉब की होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को भी लेबरर्स की, उनके वर्कर्स की, उनके एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है. सो एक्चुअली दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे रिलेशनशिप. इट इज़ नॉट वन वे. सो ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप with our employees, with our laborers. For that, of course, this chapter is basically based on a laborer turnover of SEM 5. With one picture, I will give you the brief idea about the labor turnover. Now, what is a labor turnover? You can see the laborer as different types of a laborer new joining, and of course different type of laborers or employee are leaving the organization because of the many reason. Might be there are some good and there are some bad reasons, but every organization has to take care that that amount of workers of leaving or joining not more than a particular rate. So if your labor turnover is less, it's better for each and every organization. The amount, the number of workers are leaving and joining the organization, it's called a labor turnover. So of course, laborer, workers, employee are the asset of the organization, so we should take care of that. By this small introduction, I introduce myself. I am Professor Zakira Matwankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am assistant professor in HOD of accountancy department. First, I'm introducing the what do you mean by labor turnover. Labor turnover, the meaning of labor turnover is an organization is going to concern and it has a perpetual existence. Of course, organization is going concern, it is a continuous process. एक organization का life या उसका जो एग्जिस्टेंस है कब रहता है, जब वो कंटिन्यूसली काम करे. सो हाउ एवर इट्स वर्किंग फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. तो अगर हमारा काम बढ़ता है, हम उसका हमारा वर्किंग फोर्स बढ़ाते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आती है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, कुछ लोग रिटायर भी होते हैं और हम न्यू एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन भी कराते हैं. एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ लीव द ऑर्गेनाइजेशन and some new people are joining the organization, and this phenomenon is known as a labor turnover. So in first slide I gave you the brief idea of the labor turnover, and this is again I gave you the meaning. What do you mean by the labor turnover? If the magnitude of the change in the working force is very high, it is cause a concern a personal management. Of course, अगर ये जो रेट है मतलब ज्वाइनिंग और लीविंग का ऑफ द वर्किंग फोर्स का अगर ज़्यादा रहेगा, तो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी concern for the personal management. Why so? It should also be noted that if the labor turnover is very low, it is also not desirable. So the rate should be desirable to every organization. According to the Filippo Edwin B, labor turnover refer to the movement into and out of an organization by the workforce. A high labor turnover reduce the productivity. जैसे अगर ज़्यादा लेबर टर्नओवर हो रहा है मतलब लीविंग और ज्वाइनिंग, सो ऑफकोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन रेट जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट. बिकॉज अगर हमारे यहाँ पर न्यू वर्कर्स आते हैं तो उनको हमको ट्रेन करना पड़ता है, वापस से न्यू प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वेदर दे आर स्किल, दे आर एफिशिएंट और नॉट. सो इसके लिए जो है हमको टाइम लगता है, और दैट वाई काफ़ी अफेक्ट होता है, हाई कॉस्ट इस पर जाता है हमारा. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ द लेबर टर्नओवर. क्या कॉजेज होते हैं लेबर टर्नओवर के? फर्स्ट, there are the various causes of course the labor turnover, and then can be grouped into two broad categories. See, labor turnover, as I told you, that is a क्वाइट मतलब कुछ जो हमारे लेबरर्स है वो चले जाते हैं और
कुछ जो है जॉइन होते हैं, मतलब इसमें जो है कॉजेज़ है हम अवॉइड भी कर सकते हैं और अनअवॉइड भी कर सकते हैं। तो वो कॉजेज़ क्या होते हैं? सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अवॉइडेबल कॉजेज़। what should we have to avoid when हमको अवॉइड कर सकते हैं ये लेबर टर्नओवर में, दैट इज़ डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब, देन डिससेटिस्फेक्शन विद वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए जहाँ भी हम काम कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा हो। अगर सब में पहला तो ये आता है डिससेटिस्फेक्शन विद द जॉब। अगर हम जो काम कर रहे हैं हमको ऑफ कोर्स वो इन्जॉय करना चाहिए। अगर वो काम हम इन्जॉय नहीं करें तो हमें काम करने में मज़ा नहीं आता है। सो दैट्स वाई जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट्स वाई वी कैन गिव आर 100% टू आवर जॉब। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑफकोर्स वी कैन डिससेटिस्फाइड, और ऐसा बंदा जो है ऑफकोर्स अपना जॉब छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट इज वर्किंग एनवायरनमेंट, बिकॉज वर्किंग जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बैक बाइटिंग्स हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि people are taking the advantages of you. So you every person, actually not you only, every person like the healthy environment, so वो ऐसे working environment में काम करना पसंद करते हैं। dissatisfaction with the hours of the work, of course according to the labor hour work, यहाँ पर जो एक टाइम फिक्स किया गया है according to the government, that is 8 hours for the laborers। लेकिन अगर जॉब इससे ज़्यादा वो हो जाता है, लॉन्ग कर किया जाता है, जिससे लेबरर्स जो है हैप्पी नहीं है, या ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसमें वो काम नहीं करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग द इनफ इंटरेस्ट इन दैट टाइम पीरियड, सो ऑफकोर्स ये भी एक रीज़न होता है जॉब लीव करने का। लैक ऑफ मेडिकल, रिक्रिएशनल एंड अदर फैसिलिटीज़, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स दे कैन लीव द जॉब। डिससेटिस्फेक्शन विद द पर्सनल पॉलिसीज़, अगर ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हैं विच वी आर नॉट सेटिस्फाइड, दिस में इंक्लूड कॉज द ऑटोक्रेटिक मेथड, ऐसे बॉसेज होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा ही रूल चले। ऑलवेज रिमेंबर बॉस शुड नॉट बी द बॉसी, इट शुड बी द ऑटोक्रेटिक। ये हमारे हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि आप हम ऐसे बॉस बने कि हम जो है लीडर बने, ना कि बॉस बने। लीडर, ऐसा लीडर जो टीम वर्क के साथ काम करे, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, टीम वर्क पर काम करें। तो अगर ऐसा मेथड अगर हम अप्लाई करते तो ऑफकोर्स हमारे वर्कर्स हमसे काफ़ी अटैच रहेंगे, हमारे वर्कर्स जो है हैप्पीली काम करेंगे। लेकिन अगर ऑटोक्रेटिक मेथड हो, ठीक है, जिसमें ना जहाँ पर लेबर का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हो, लेक ऑफ द प्रमोशनल पॉलिसीज़ हो, लेक ऑफ प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं हो, सो इसकी वजह से, ये प्रॉब्लम्स की वजह से जो है एक रीज़न होता है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, अगर हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी जो है हमसे जो काम नहीं कर रहे उन्हें ही जो है मोटिवेशन मिलता है और उन्हीं को आगे का जो पार्शलिटी यू कैन से इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है, तो ये एक सब में बड़ा रीज़न होता है कि जहाँ पर जो है अच्छे काम करने वाले लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं। ऐसे वक्त बॉस ये नहीं सोचना है कि एक्चुअली वी आर लूजिंग आर असेट, वो ये नहीं, बट दे आर बिलीविंग इन द डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम ऐसा काम ना करें एज अ बॉस, अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना करो तो डेफिनेटली वी विल save our laborers or workers or employee who is honest to the organization and give the benefit in the future। लैक ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट पॉलिसी, जो जितना स्किल होगा, जितना एफिशिएंट होगा, उसको उसकी प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ जो बातें करता है उनको जो है हाई पोस्ट पर जॉब मिल जाए और जो काम कर रहा है उनको कोई मोटिवेशन या प्रमोशन ना हो। लैक ऑफ फॉरसाइट एंड मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग अगर नहीं होती है तो दिस इज़ वन रीज़न। पुअर ग्रुप रिलेशंस, अगर ग्रुप रिलेशंस अच्छे ना हो और किसी एम्प्लॉय के तो ऑफकोर्स वो और उसका दिल ना लगता हो वहाँ पर, तो वो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यहाँ पर जॉब छोड़ देता है। इन एडोकेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट, अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है और या कोई भी चीज़ सफ़र हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो है ऑनेस्ट रहे, ना कि उसको निकाल दें या उससे कुछ और एक्सपेक्ट करे जो वो नहीं चाहता हो। सो दैट इज़ द सम अवॉइडेबल रीज़न जो है विच यू कैन से द कॉजेज़ ऑफ द लेबर टर्नओवर। बट ऐसे कुछ रीजंस होते हैं विच कैन बी अनअवॉइडेबल, जिसको हम अनअवॉइड
मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, विच इज़ क्रिएट अ सीरियस केस, एक्चुअली द सीरियस impact on the organization. And what are they? Employee personal betterment. Sometimes employees leave the organization to avail more attractive opportunities as well. अगर हमें कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और जहाँ हम प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो ऑफकोर्स डेफिनेटली वी विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटी और हम लीव कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हर इंसान इस पर यकीन करता है कि हमें आगे बढ़ना है. सो इफ़ यू गिव द बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स हम वहीं पर शिफ्ट होंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा अनअवॉइडेबल केसेस हो जाता है. फैमिली सर्कमस्टांसेस, अगर फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है या अगर कोई लेडी है उसकी शादी हो रही है और वो दूसरे स्टेट में जा रही है तो ऑफकोर्स जो है ये रीज़न होता है. इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़. अगर एम्प्लॉय मोबिलिटी कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स तो ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. रिटायरमेंट, डेथ, इलनेस और एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डिसेबलमेंट, तो ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस. ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको कहीं की जो है क्लाइमेटिक सूट नहीं करता है क्लाइमेट वहाँ का, सो वो लीव करते हैं जॉब. मैरिजेस, ऑफकोर्स आई गिव द एग्जाम्पल बिफोर ओनली. डिमिसल और डिस्चार्ज. Then redundancy, which may be due to the causes of like a seasonal trade shortage of the material, lack of planning, courage, foresight, part of management organization. So ये because of the management organization की वजह से ये लीव करते हैं. नेशनल सर्विस सच एज इनरोलिंग फॉर द नेशनल इमरजेंसी. अगर गवर्नमेंट एजेंसी है और नेशनल इमरजेंसी की वजह से एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे खासकर आर्मी में ऐसा होता है पीरियड्स ऑफ वॉर. सो ये एक अनअवॉइडेबल रीज़न है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एक्चुअली दिस पिक्चर इज शोइंग, कैन यू टेल मी. यहाँ पर जो है कभी कभी पैसा जो है, पैसे से देखिए ये इंसान भाग रहा है. आप ये पिक्चर कुछ कहती है, तो ये पिक्चर एक्चुअली क्या कह रही है, वाई सो. हमेशा आप याद रखें हम इंसान जो भी हम जॉब करते हैं बिकॉज ऑफ टू अर्निंग द मनी, बट ये पिक्चर में देखिए कि आप जो है पैसे को देखकर ही ये भाग रहा है. सो वाई सो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. See, this is very important. You have to maintain your amount and the labor force. That is very very important. Actually what I am trying to say is cost of labor turnover. हमेशा याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है लेबर टर्नओवर का इतना बर्डन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लेबरर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन हो जाए. यानी हमारा जो रेपुटेशन इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, हम एक सर्वे लेते हैं कि वहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है तो पूछते हैं उससे कि हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर मोटिवेटिंग, वेदर दे आर गुड टू द एम्प्लॉयज़ और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है एक रेपुटेशन बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, हम काम करने जाते हैं वहाँ पर. लेकिन अगर ऐसा लेबर टर्नओवर ज़्यादा रहेगा, लोग ज़्यादा छोड़ कर जाएंगे जॉब और जॉइन भी होंगे, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है. जब कॉस्ट बढ़ता है तो ऑफकोर्स बर्डन बढ़ता है जिसकी वजह से कंपनी में सफ़र और लॉस. सो यहाँ पर जब कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बर्डन बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की हालत ख़राब हो जाती है. सो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस लेबर टर्नओवर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट. दैट दिस पिक्चर इज शोइंग दिस थिंग्स. सो नाउ it is obvious that labor turnover leads to high cost and lower productivity, and this has also been pointed out by the National Commission on Labour. The cost of labor turnover can be classified into two groups. First, preventive cost. What is the preventive cost? That is personal administration, medical services and welfare services. ये जो है हमारे प्रिवेंटिव कॉस्ट है एंड मिसलेनियस स्कीम्स. सो ये जो है हमारा प्रिवेंटिव कॉस्ट है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रिड्यूस करने में कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फर्स्ट इज लॉस ऑफ प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हमको ये बेयर करना पड़ता है कि प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट लॉस हो जाता है, इनएफिशिएंसी ऑफ द न्यू वर्कर हमको बेयर करनी पड़ती है. जो हमारा एफिशिएंट वर्कर अगर जॉब छोड़ के चली जाए और इनएफिशिएंट वर्कर अगर जॉब करने आ जाए तो ऑफ कोर्स दैट वी हैव टू बेयर.
नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड मशीन्स एंड ब्रेकेजेस, अगर उनकी वजह से ऐसे न्यू एम्प्लॉय की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, सो ये भी हमको बेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द लेबर, दैट वी हैव टू बेयर विच इंक्रीज द कॉस्ट। एंड कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव, अगर किसी को कोई इनएफिशिएंट नहीं होता है तो ऑफकोर्स वो हमारा जो है जो हमारा मटीरियल है वो उसको बनाने के लिए काफ़ी वेस्टेज करता है, और विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मनी। तो देर आर द टू, प्रिवेंटिव कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लेबर। सो दैट्स वाई वी हैव टू ट्राई दैट कि हम जो है इसको हमारा जो लेबर कॉस्ट है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट है, हम जो है इसको लेस करें, कम करें, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो। Next is treatment of labor turnover cost. How we treat our labor turnover cost. See here, this picture is what this picture is saying. Actually here, see, the boss is playing very important role in the organization. The boss should not be like that कि divide and rule policy कि आप ऐसे हो और दूसरे को कहें आप ऐसे हो. The boss should be friendly to each and every employee, honest to everyone, and motivate the employees in each and every department. So the friendly relationship between the employer and employee create a good relationship between that, and the feelings of the teamwork and the honesty with related to the organization is playing a major role. If the boss is not like that, of course you cannot like the policy of the boss. If they have the autocratic management, if they follow the divide and rule policies and the backbiting, of course no one are ready to work in the particular environment. So I'm taking this picture to how to treat the labor turnover cost. So this is the basic thing what the each and every employee and of course employer want in the organization: the healthy environment, happy environment in the working area. So of course each and every employer and employee should be honest with the organization, and they give their 100% to reduce the labor cost and to increase the profit of the organization. So actually what I'm trying to say, the labor turnover cost is normally treated as a part of overhead. Of course, if the labor turnover cost is divided as a preventive and replacement cost, preventive costs are charged to the department of the firm in the proportion of the labor strength. तो लेबर स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है प्रिवेंटिव कॉस्ट को जो ईच डिपार्टमेंट में प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट में भी आइदर ट्रीटेड लाइक प्रिवेंटिव कॉस्ट और डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है डायरेक्टली किस पर चार्ज होता है, प्रोडक्ट पर. It does not stand to reason to charge a particular department with the replacement cost, particularly when replacement is caused due to the short-sighted policy of the management and not due to the fault of the concerned department. So sometime it's happened कि labor cost का जो value बढ़ जाता है because of the management, not because of the fault of the department. So that is why it is very necessary, who's the playing the major role is the management. They should be concerned about their labor cost. They should be motivate their employees and try to reduce the labor turnover. And the next is remedies of reducing the labor turnover. What is the remedies, हम किस तरह से हमारे लेबर टर्नओवर्स को कम कर सकते हैं. सी यहाँ पर क्या होता है, अगर एक बंदे का माइंड बन जाता है कि यार मुझे मेरा जॉब छोड़ना है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है, एंड आई विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, और वो हमेशा जो है ये लाइन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ना चाहता है, तो अगर वो इज़ डूइंग द बेटर, तो हम तो क्या होता है कि दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी देखते कि यार इसका जैसे ये अच्छा कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं. तो एक जाने की वजह से दूसरों का भी माइंडसेट हो जाता है कि हम भी आगे बढ़े, हम भी ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें. बट ये अपॉर्चुनिटी माइट भी सबको नहीं मिलती, बट ऐसा भी नहीं, बट इसमें सब में बड़ा लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन का. सो ऐसे क्या चीज़ है जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके हेल्दी करके रिलेशन रख के अच्छे एनवायरनमेंट में काम करा सकते हैं. सो व्हाट इज़ दिस, व्हाट वी हैव, आई एम ट्राइंग टू से कि द एम्प्लॉय शुड नॉट क्रॉस दिस लाइन. दिस लाइन मीन्स वी कैन, एम्प्लॉय शुड नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन विच रिड्यूस द लेबर टर्नओवर. एंड हाउ इट इज़, सी फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक. पहले हमको पूरा कलेक्ट करना पड़ता है डेटा कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो, वेदर दे आर एफिशिएंट और नॉट. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप. जो प्रोसीजर है हमको उसको फॉलो करना पड़ता है. साइंटिफिक रिक्रूटमेंट मतलब जिस टाइप से हमारा
प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वो एलिजिबल है या नहीं है, हमको उनका प्रॉपर सिलेक्शन करके उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट करनी पड़ती है और उसका फॉलोअप लेना पड़ता है कि वेदर दे आर डूइंग वेल और नॉट, which is very very necessary. Job analysis and evaluation. Job analysis means here the organization analyze the job and evaluate the person efficiency, whether they are doing the proper job work or not according to their criteria. So that is very important कि इस चीज़ का जो है पूरा जानकारी जो है एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट को रखनी पड़ती है. एग्जिट इंटरव्यू, अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाहता है सपोज, तो उनका एग्जिट इंटरव्यू लेना ज़रूरी है. दे वांट टू नो कि वाई दिस एम्प्लॉय जो है वो जा रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम है, ताकि ऐसी वापस से प्रॉब्लम दूसरे एम्प्लॉयज़ को ना हो. सो दैट्स वाई एग्जिट इंटरव्यू इज़ नेसेसरी बिकॉज इट गिव यू द आइडिया अबाउट टू द मैनेजमेंट व्हाट इज़ द लूप होल्स इन द वेयर दे आर लैकिंग. जॉइंट कमेटी, एक कमेटी बिठाई जाती है जॉइंटली और ट्राई किया जाता है कि हमारा एम्प्लॉय जो है अच्छा है, ऐसे अच्छे एम्प्लॉय को रोकने की कोशिश की जाती है, उनको और बेनिफिट्स देने की कोशिश की जाती है, उनको और मोटिवेट किया जाता है जॉइंट कमेटी के थ्रू. अगर ये काम कर जाता है तो ऑफकोर्स हमारा एम्प्लॉय हमको छोड़कर नहीं जाता. देन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लेबर सुपरविजन, ट्राई किया जाता है कि लेबर सुपरवाइज को अच्छे से किया जाए, कभी लेबरर को कोई प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनाइजेशन से. तो अगर क्वालिटी ऑफ लेबर सुपरविजन अच्छी हो तो ऑफकोर्स जो है लेबर टर्नओवर के चांसेस कम होते हैं. Next is improvement in the relationship between management and labor. From the first slide I'm trying to say that the management and labor should take the initiative between their good relationships. If they're lacking in that, if they fail to their relationship maintain to the good relationship, of course them nobody will suffer but the organization. So that is very very necessary to maintain the good relationship with the employee and the employer. साइंटिफिक ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन पॉलिसी, हमेशा याद रखिए जो जहाँ एलिजिबल होता है उसको वहीं प्लेसमेंट करनी चाहिए. अगर ऐसा प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पर अगर प्रमोशन देने की जब किसी को ज़रूरत होती है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो देते हैं तो बहुत बेटर होता है. लेकिन जो एलिजिबल नहीं है जो और उनको प्रमोशन दिया जाए तो दूसरा जो अच्छा काम करता है वो ऑफकोर्स उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो अच्छा काम नहीं करता. दिस इज़ द मेन रीज़न वेयर द employee turnover, labor turnover increasing day by day, because dirty politics of course may affect the organization. Improve health and safety measures, जहाँ तक हो सके हमारे एम्प्लॉय को हमको हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स देने चाहिए, उनकी हेल्थ का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितने एक घर वाले रखते हैं. प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, अगर कोई एम्प्लॉय पढ़ाई अपना जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहता है तो दे विल गेट अ चांस बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट देम और उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट फैसिलिटीज़ भी जो हैं उनको देनी चाहिए. सो बाय दीज फैसिलिटीज़ द एम्प्लॉयर of course management can try to safeguard the organization by not increasing or by reducing the labor turnover. Measures of the labor turnover, क्या क्या measurement लेना चाहिए? So there are the different methods of adopted for the measurement of the labor turnover. The method of measurement will be adopted by the firm depending upon the management conception and definition of the labor turnover. देखिए मैं बताती हूँ पहले किस तरह से separation method. Under this method, labor turnover is considered as a relationship between total number of separation or a given period. Separation method किस तरह से calculate किया जाता है? See, labor turnover is number of workers separated during a period and average number of workers during the period multiplied by 100. Now, how to calculate the number of average number of workers during this period is number of worker at the beginning of the period, month, you can say period, year, month, whatever the time period, and number of the worker at the end of the period. So starting में जो number of workers थे और end में जो number of workers हैं उन दोनों को प्लस करके हमको divide by 2 करना है. So you will get the average number. और जो भी हमारे वर्कर्स सेपरेटेड हो रहे छोड़कर जा रहे ऑर्गेनाइजेशन उनका वैल्यू लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100. सो यू विल गेट दिस लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड. Next is basis of avoidable separation method. It is argued that any organization a certain amount of labor turnover is inevitable. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करती है बट इतना लेबर टर्नओवर होता है एंड द परसेंटेज ऑफ द सेपरेशन कैन बी हाई ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉजेज सच एज सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ, फैमिली कंडीशन, सीजनल, साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन बिजनेस.
So therefore separation should be segregated or avoidable or unavoidable. So labor turnover should be measured as a relationship between avoidable separation and average working force related to. Now how to calculate it? This methods, actually this limitation of this method is rather difficult to accurately classify the separation. इसमें accurate हमको नहीं पता चलता whether it is कि unavoidable का कितना causes है और unavoidable का कितना causes है. So this is the formula. लेबर टर्नओवर रेट, अवॉइडेबल सेपरेशन जो अवॉइडेबल रीजन से गए उनके नंबर्स, और एवरेज वर्किंग फोर्स मैंने अभी बताया था एवरेज कैसे फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज अ लेबर टर्नओवर. Basis of accession, this is a third method we can measure the labor turnover. There are some expert who hold the view in a logical way to measure the labor turnover is to calculate as a relationship between accession and the average working force. Okay, so what do you mean by basis of accession? जितने जो हमारे workers जो है इस थ्रू जा रहे हैं accession के थ्रू, इसे कैसे calculate करेंगे? accession of the number of working force multiply by 100. Okay, replacement method or net labor turnover method. Here in this method the labor turnover is measured as a relationship between actual replacement of the labor during a period and average number of workers. मतलब actual जितना हमारे जो number of workers leave करे हैं उनका और average वर्कर्स जो है उनका जो है कैलकुलेशंस हमको करना है यहाँ पर. सो यहाँ पर जो उसका कैलकुलेशन आएगा दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिवाइड बाय ऑफ कोर्स द सेम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो दीज आर द टू वे. एंड यहाँ पर जो है अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट मेथड, अगर रिप्लेसमेंट हो रहे हैं हमारे वर्कर्स यहाँ पर आ जाएंगे उस पीरियड में. असेशन मतलब जो पोजीशन और रैंकिंग या पावर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो बेसिस ऑफ असेशन और रिप्लेसमेंट, ये फोर्थ वन हो गया आपका. एंड फिफ्थ वन इज फ्लक्स मेथड. दिस मेथड टेक इन टू द अकाउंट बोथ सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट. यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं बल्कि साथ में कैलकुलेट किया गया है इसको. सी बाय दिस नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग अ पीरियड एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज से डिवाइड करना है इसको, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100. सो यू विल इजीली कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर. दिस इज द fifth method of flux method. So I hope by this thing you can understand how laborers, employee, workers are very very important to the organization. तो जितना एक organization को worker की ज़रूरत होती है उतना ही worker को भी organization की ज़रूरत होती है. There is a two-way communication, two-way relationship between the organization and the employee. So of course organization should take care of their employees, their workers and their laborers, and similarly each and every employee should be honest and good to their organization. By this explanation I'll end up my presentation. If you have any problem please write in a comment box. Thank you, have a nice time by that time. Bye everyone.